That's for Dina. Prashant? यहाँ पे आ जाओ। Yes. This is my first feature film that I've directed, and I'm really excited. It's a great honor that it's the opening film for Mami, and I mean, it's a great festival. I'm looking forward to watching other films, but it's really an honor, and it's also very nerve-wracking that it's our first screening ever in India, first public screening in India. बाहर जो भीड़ देख रहे हैं लोग इस तरह का फिल्म फेस्टिवल में आपकी पहली डायरेक्टोरियल वेंचर मेरे ख्याल से इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस इस तरह का प्रेशर या एक्साइटमेंट क्या कुछ है अब तो मतलब क्या प्रेशर, अब तो फिल्म बना ही लिया है. Now there's nothing I can do. I'm just so happy that so many people have come to, I mean, I hope many people have come to watch it, and most importantly, I hope that they like it or they can relate to it in some way. हमने बाहर लोगों से बात की तो लोग यही कह रहे हैं कि वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं वो ट्रेलर देख के कि ये फिल्म आखिर किस बारे में है. तो आप ये सीक्रेसी हमेशा से बरकरार रखना चाह रही हैं. I mean, I think there's more fun if I tell you the ending. You know, it's a human drama film. There's an element of obviously some suspense. As the title suggests, it's a death in the Ganj. Somebody's going to die. So it wouldn't be fair if I told you who or how or why. It's a, you know, it has its ups and downs. I mean, there are things, it's very liberating being behind the camera also. You know, you get to exercise a lot more control, you have many more choices. It's also more terrifying, there's more responsibility. So I think there are pros and cons to both. I've acted in more than 40 films, I've directed one. It's not a very fair question. easy क्या मानती हैं एक्टिंग कर रहा हूँ डायरेक्शन और क्या डिफिकल्टी है easy और डिफिकल्टी मतलब दोनों में कुछ मतलब डिफिकल्टीज भी है एंड देयर आर थिंग्स अबाउट इट व्हिच आर एंजॉयबल, देयर आर थिंग्स अबाउट इट व्हिच आर चैलेंजिंग. बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सही है सर. Call him. Abhishek. Sir, please come now. Abhishek. Honey and Abhishek, first maiden venture production. How does that feel like to be here? It's great. Absolutely great. Any nervousness regarding the premiere that the film is now finally coming out after touring various festivals? Well, you know, exactly. This is not the first screening of the film, so we're very proud that this is the India premiere sort of at Mami. But we have some idea of what the audiences have been, how the audiences have been reacting, and keeping my fingers crossed that they enjoy it here as well. So we are excited about the film. More than the nervousness, we are excited. सर मैं बहुत क्रिएटिव देखी सर तो कितना स्पेशल डे मानते हैं आप. जी बहुत ही स्पेशल है. मतलब हमारी पहली फिल्म का आज मुंबई में प्रीमियर हो रहा है, तो मतलब क्या कहें इससे स्पेशल क्या है. And वो भी मामी फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म है. It's already is very prestigious, you know.
to have to stand on this platform. Abhishek, as a director yourself, what do you have to say about Konkana's direction in the film? No, I think it's a very well made film. I think it's a story that Konkana really felt for. It's something very deeply rooted, in her family and all of that. So it's a world that she knows very well, and it was really amazing to see her work because she's an equally accomplished director. Yeah. जी ये लास्ट बना जी लास्ट बना रोल करें? ठीक है, स्टार्ट। नेहा, कोंकणा की पहली फिल्म हर किसी के लिए अब उसकी पहली फिल्म बहुत स्पेशल होती है। आप कितनी एक्साइटेड हैं और बाहर जो भीड़ देख रही हैं आप, क्या लगता है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी एक्टर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का इंसान अगर अपनी पहली फिल्म बनाए, आई थिंक बहुत ज़रूरी बात होती है टू गो आउट देयर एंड सपोर्ट इट। उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई दोस्त अपनी पहली फिल्म बनाए तो उसको सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। कोंकणा इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं उसकी फिल्म के लिए ना आऊँ। और जब हमें पता चला दैट इट्स द ओपनिंग फिल्म इन मामी, वी वर वेरी वेरी प्राउड। हमने नरेशन मैंने बहुत देर पहले सुनी थी इस फिल्म की, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट कम टू लाइफ, एंड दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। नेहा, जिस तरह से जियो मामी फिल्म फेस्टिवल हर साल एक अलग लेवल पे जा रहा है, इस बार क्या लगता है कि इंडियन फिल्में हैं या भूटान की फिल्में हैं, अलग अलग देशों की फिल्में हैं, तो मानती है जो फिल्म फेस्टिवल कल्चर है वो अब यहाँ पे भी एक नई इंटेंसिटी के साथ नजर आ रहा है? आई थिंक कोई भी कल्चर अगर आप किसी भी इंटेंसिटी के साथ देखो तो सिर्फ उस जगह की ऑडियंस ही डिफाइन कर सकती है, एंड एवरीथिंग दैट चेंजेस बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस फॉर इट। और आजकल मामी के लिए भी बहुत ही बड़ी और बेहतरीन ऑडियंस है, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट इन एनी अदर वे। मैं भी अपना पास खरीद के लाइनों में खड़े होकर जाके फिल्म्स देखती हूँ। सो आई बीन डूइंग इट फॉर मेनी ईयर्स, और आई थिंक मामी हैज़ अ ग्रेट सिलेक्शन। इट्स एक्चुअली आउट ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स यू सी वन ऑफ द टॉप 5 or 10 festivals with the best selection of films, and that's what makes Mami so special. Neha, you said you heard a narration of the film long ago. Yes, sorry. Any point of time you wanted to be a part of it? Well, you know, it's one thing that you want to be a part of every good film. There's another thing whether you fit into any of the parts. I know the people she's cast for the film are absolutely right. There's Honey who's involved in the casting. There's nobody better as far as casting is concerned. She's got one of India's best casting directors to produce her film. So obviously he's done the right job. But I'm very excited to hear what she's done because I know the story and I want to see it come to life. Any plans for you to even turn a director in the future, just like Konkana did? Well, nothing right now. It's just I think it's too much, and I don't think I have the bandwidth yet. Thank you. Thank you. अंगद, कोंकणा की ये पहली फिल्म एक डायरेक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए उसकी पहली फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपकी पहली फिल्म में भी धमाका किया। कोंकणा के लिए क्या विश करेंगे? जी, मेरी तरफ से कोंकणा को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि एक तो बहुत ही बढ़िया कलाकार रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना फिल्म इंडस्ट्री में काम संभाला है, जैसी फिल्में उठाई हैं, उनकी कला मुझे बहुत ही आकर्षित करती है। एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट आउट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं फिल्म्स की तरफ, दे आर रियली गुड। सो या आई विश हर ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म, क्योंकि इसमें जो
she's been able to, even the star cast is exceptional. They are very, very talented. Each individual has made a mark in the industry with their own talent. So yes, for them, towards her, Konkara, even as far as the cast is concerned, I think this is one film to really look forward to. जियो मामी से जुड़ी हर आर्टिस्ट की एक याद होती है. आप कभी एज अ फिल्म स्टूडेंट या मूवी बफ भी आते रहे होंगे. क्या कुछ आपसे जुड़ी याद है जियो मामी को लेकर? जी, मेरी यादें तो इनफैक्ट जहाँ से शुरू होती हैं वो मिस्टर बच्चन से ही होती हैं. जिस तरीके से हमने अभी पिंक भी करी है, जिस तरीके से उसका प्लेटफॉर्म मिला है, वो इनफैक्ट कल आए थे. उन्होंने बहुत ही एक एक्सेप्शनल स्पीच दी है, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट रहा है. और भी काफ़ी सारी फिल्में मामी ने प्रमोट करी हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नॉट जस्ट द फिल्म्स बट जो मेकर्स हैं और ख़ास करके जो कलाकार हैं आकर यहाँ पर मिंगल करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बात करते हैं. बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म है हर एक आर्टिस्ट के लिए, हर एक मेकर के लिए. आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि इट हैपन्स एवरी सिंगल ईयर. अभी मिस्टर आमिर खान भी आए थे, दंगल भी प्रमोट हुई है. सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज अगर आप देखें इट्स जस्ट नॉट फॉर द न्यू, इट इज़ ऑल्सो फॉर द पीपल हु हैव बीन हियर फॉर गुड 20, 25, 30, 45 years as well. So yeah, it's a great platform to be on. आपके हक से क्या कुछ नजर आने वाला आने वाले वक्त में, अगर फिल्मों की बात करें? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है जो स्टारडम है, अब जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो हीरो बन चुके हैं कहीं ना कहीं, और जो स्टारडम रहेगी वो कंटेंट के पास ही रहेगी. फिल्में एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जहाँ पर वी आर ग्रेविटेटिंग मोर टुवर्ड्स द कंटेंट. We want to see good films, we want to see also very good actors. So कहीं ना कहीं yes, stardom है अभी, लेकिन we are moving and gravitating towards actors who can deliver at towards their corrective parts. तो आपके पार्ट से क्या कुछ सरप्राइजेस होने वाले हैं फिल्मों के? मेरी तरफ से आर यू आस्किंग मी अबाउट द अपकमिंग फिल्म्स? देयर इज़ डियर जिंदगी, अब रिलीज पर है डियर जिंदगी. देयर इज़ project I'm doing with Excel. Karan Anshuman is directing it. It's called Power Play with Richa Chadha and Mr. Vivek Oberoi. So I think that will release in March. So मेरी तरफ से भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आगे देखते हैं. I hope I've been given a very good platform with Pink. It's been recognized well. So I want to work with Shujit one more time. Yeah, thank you. अरे